I welcome you all to this video session in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से इस वीडियो सेशन में स्वागत करते हैं. Today, in this video session, we are going to focus on the topic named the two destinies and results. आज की इस वीडियो सेशन के द्वारा हम लोग आज उस विषय के ऊपर ध्यान देंगे जिस विषय का नाम है दो नियति और उसका परिणाम. Before starting this video session, I want to welcome you all, those who have subscribed this video. जिन्होंने इस वीडियो को जो पिछले सेशनों में सब्सक्राइब किए हैं, मैं उन सबको अपने हृदय के तौर से धन्यवाद देता हूं. Those who have not yet subscribed, I welcome you all that you subscribe and click the subscribe button and the notification bell so that you can see all the new videos which will be uploaded in the coming days. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी हर एक नई वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उसमें प्रभु में आनंदित कर सकते हैं. I welcome you all for the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, so that you can glorify your name. So the name of your Lord should be glorified. In today's topic, we have introduction, which will be on the topic of two destinies and results. दो नियति और परिणाम के बारे में परिचय होगा. After that, there will be about what are the two destinies and what are the works of the flesh, and next are the last point, it will be what are the fruits of the spirit. इस वीडियो सेशनों में आप ये देखने जा रहे हैं कि हमारी विषय दो नियति और परिणाम के विषय का परिचय होगा और ये दो नियतियां क्या है और शरीर के काम क्या क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, और अंत में आत्मा का फल क्या है और उसका परिणाम क्या होगा. मेरे भाइयों बहनों, इस विषय के ऊपर हम लोग अभी ध्यान देने जा रहे हैं. My brother and sister, now we are going to focus on this topic about the two destinies and the results. About this topic, we are going to focus on the Word of God, and we will take from the Bible, from Galatians chapter 6, verse 7 and 8. आज की इस विषय को लेते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे, जो प्रभु का वचन में गलातियों की पत्री उसकी 6वीं अध्याय उसका 7 और उसका 8वीं वचन में आदर करते हुए हम आज की इस विषय पर ध्यान देंगे. हमारे आज की इस विषय की इंट्रोडक्शन की ओर हम शुरू करें. यहाँ पे इस वचन में ऐसा लिखा गया है
For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. In Galatians chapter 6 verse 7 it is written, गलातियों 6 का 7 में ऐसा लिखा गया है कि जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. When we look into the nature, just we can see that all of everything reproduce their same kind in the same way which is being shown, it is been harvested. इसी प्रकार हम प्राकृतिक में भी ऐसे हर एक वस्तु और चीज को दे सकते हैं जो उत्पन्न करता है, ताकि वो जिसका विषय है, जो वस्तु है, वही उसका उत्पन्न करता है. Harvest being as sure as the sowing, ताकि ये है कि हम जो भी बोएंगे उसका कटनी जरूरी है और वो निश्चित है. So every man will reap what he sows. इसीलिए हर एक मनुष्य भी जो कुछ वो अपने जीवन में जो भी बोएंगे वही वो मनुष्य उसकी कटनी भी करेंगे. And be the responsible for his own destiny. ताकि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा विषय जो है नियति के बारे में है, बल्कि यही विषय अपनी नियति के लिए जिम्मेदार भी हम ही होंगे. और ये मूर्खता होगा कहने के लिए कि मैं अनंत जीवन का कटनी करूंगा यदि मैंने शरीर की काम के द्वारा यदि बोया है. It will be foolish to talk about that I will reap the eternal life when one sows to the works of the flesh. This we can see in Galatians chapter 5 verse 19 to 21, 1 Corinthians 6 verse 9 to 11, Romans chapter 1 verse 29 to 32. And in the same way it is equally foolishness to talk about being lost if one sows to the Spirit. और उसी तरह यदि कोई बात ऐसी मूर्खता होगी यदि कहता है कि मैं नाश हो चुका हूं और मैं नाश की कटनी काटूंगा, जब एक व्यक्ति आत्मा की ओर से बोता हो. In Galatians 6 chapter 8 it says, it's written, for he that sows to his flesh shall to the flesh the reap corruption, but he that sows to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. गलातियों 6 का 8 में लिखा गया है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगी, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. So in these two verses we can see a man, a human being can decide their destiny of his future upcoming life. यहाँ पे ये दोनों वचनों के पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन की जो नियति है वो और कोई तय नहीं करेगा, हम लोग ही व्यक्तिगत तौर से वो कौन सी नियति हमारे जीवन में होगा, हम उस विषय के लिए जिम्मेदार रहेंगे. In these verses we have seen if we are showing the works of the flesh, so they will also have to reap according to the flesh of the corruption. यदि कोई
शरीर की कामों के द्वारा बोते हैं, वो शरीर की ओर से ही उस कटनी को काटेंगे. And those who shows the Spirit, he will reap the spirit of the eternal life. और जो कोई आत्मा की ओर से बोते हैं, वो आत्मा की अनंत जीवन की कटनी को ही काटेंगे. So my brothers and sisters, we have to know what are the works of the flesh. इसीलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि शारीरिक काम क्या क्या है. For that, when we come to Galatians chapter 5, verse 19 to 21, there we can see the 17 works of the flesh is been written there. जब हम गलातियों 5 का उसका 19 से लेकर 21 तक यदि वचनों में पढ़ेंगे, वहां पे 17 शरीर के कामों के द्वारा उसके विषय में वर्णन किया गया है. When we are talking about the works or the deeds of the flesh, it also demonstrates about the worldly life. At the same time, it tells about the sinful nature of the human being. यहाँ पे जब हम शरीर के काम के बारे में कहते हैं, तो ये संसार की एक जीवन को दिखाता है, एक संसारिक जीवन को. उसी समय ये एक पाप के ओर से एक स्वभाव, एक जीवन को भी दर्शाते हैं. Here we can see when we are talking about the work and deeds of the flesh, the sinful nature. Here the question arises how the sinful nature came into the human being. यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कैसे मनुष्य के अंदर पाप की स्वभाव आए. Today I want to say you, when we look towards the Genesis, when God created the first man, the God created according to his own image, where there was no sinful nature. He was like according to the image of God. जब हम उत्पत्ति में आए, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, वहां पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मनुष्य को बनाया, जहां पे एक भी पाप की स्वभाव उस मनुष्य के जीवन में नहीं था. So how the sinful nature came into the human being? We can study in Genesis when the first Adam and Eve disobeyed the commandment of God, they were separated from God. वहां उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि पहले मनुष्य आदम और हवा जब परमेश्वर की बात को उल्लंघन किए, या जो आज्ञा दी गई थी वो आज्ञा को जब उल्लंघन किए, तो वे परमेश्वर से दूर हो गए, या परमेश्वर की आत्मा उसी समय मर गए. वचन में लिखा गया है. In this way the sinful nature came into the human being, and these the works of the flesh, the root is about the sinful nature which enter into the human being, is the main root that produced from the human beings has the works or the deeds of the flesh. और इस पाप के कारण जो मनुष्यों ने अपने परमेश्वर से उल्लंघन किए, अपनी आज्ञा को ना मानने के कारण जब परमेश्वर की आत्मा उनसे अलग हो गए, वहां पे ही पाप की स्वभाव का जड़ के रूप में मनुष्य के अंदर से ये सारी शरीर के काम प्रकट होने लगे. Now my brother and sister, let's focus on that works and the deeds of the flesh. What are they? As I told you before, in Galatians chapter 5 verse 19 onwards, it's been written. We will discuss one by one. There we can see the 17 works and the deeds of the flesh.
हम लोग गलातियों 5वीं अध्याय उसका 19 से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहां पे 17 शारीरिक काम के बारे में वर्णन किया है। और यदि हम उन 17 विषय को लेकर उसे 4 भागों में बांट सकते हैं, हम उसे 4 भागों में बांटे, वहां पे हम पहले और यदि हम देखें तो पहला भाग ये है, the first part of the 4 divisions of the sins are, number 1 part is the 4 sins of lust। उसका पहला भाग की पहली विषय ये है, जो 4वें भाग की पहला भाग ये होगा कि जो क्रूर दृष्टि की ओर से और वासना की पाप के बारे में, वहां पे 4 पापों को उस एक भाग में हम देख सकते हैं। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है in Galatians chapter 5 verse 19, there we can see that 4 works and the deeds of the flesh, or we can see that the 4 sinful nature has the first part, has the sin of the lust. So there we can see about the adultery and the fornication। वहां पे हम उस हिंदी में हम कहते हैं उस व्यभिचारी की विषय को वहां पे कहा गया है। वहां पे हम देख सकते हैं, we can look on Matthew chapter 5 verse 32 about that topic, about the adultery and the fornication. It says about the unlawful sexual relationship between men and women when they are single or married। यहां पे हम देख सकते हैं कि वो शारीरिक जीवन में और वो उस विषय में जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो गैर कानूनी की तरह यौन संबंध अकेले और विवाहित होते हुए जो होते हैं, उसको परमेश्वर ने व्यभिचारी की ओर से वहां पे कहा गया है, जो एक मनुष्य की कामों का एक प्रतिफल है, जो पाप की स्वभाव में गिना गया है। वहां पे और एक the first part of the third point, it is uncleanliness। वहां पे हम गंदे काम परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। So what is uncleanliness? It tells about the opposite of the purity, such as it includes the homosexuality, lesbianism. These all are also the other sexual perversion। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम गंदे काम कहते हैं वो है समलैंगिकता, जो पुरुष और स्त्रियों के बीच में होता है, और पुरुष पुरुषों के साथ और स्त्री स्त्रियों के साथ, और ये सब कुछ वो यौन विकृति के रूप में गिने गए हैं। यहाँ पे ये परमेश्वर कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी जो कार्य हैं, जो शरीर की काम है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, जो उसे पाप की स्वभाव की ओर से गिना गया है। यदि हम उसके 4वें पॉइंट में आए, वहां पे सेंसुअलिटी, लूचपन के बारे में भी कहा गया है। वहां पे हम देख सकते हैं, it tells about this all the things about the unchastity, the lustfulness and the flippy things which make them emotion, anything tending to the sex, sin and the lust। यहाँ पे हम उस विषय को देखते हैं। लूचपन कहने से ऐसे विषय हैं जो उन्हें यौन और उसकी वासना के तौर से जो विषय हैं, जो उसकी बढ़ावा देते हैं, उसको लूचपन कहते हैं। जो शरीर की काम है, जो पाप की स्वभाव है, जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होता है, जो प्रभु की आत्मा ना होने के समय इन विषयों को कहा गया है। यदि हम उसके 4वें, when we come into the
the division of the four parts of these deeds and works of flesh, the second part comes about. It's written about the two sins of impiety and superstitions. उसके चौथवे जो विभाजन की ओर से किया गया, उसकी दूसरी भाग ये है कि वहां पे लिखा गया है कि वो हर एक अपवित्रता और अंधविश्वास के दो पाप के बारे में. There we can see about number one of idolatry. It tells about the image, those who worship the images. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मूर्तियों को और किसी भी रूप का आराधना करने वालों को मूर्ति पूजा कहा गया है, जो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ी पाप है. At the same time, it tells about the idolatry, that it includes anything on which affections are passionately or admiration of the heart. यहाँ पे दूसरे विषय को भी लेकर उसे मूर्ति पूजा के समान गिना गया है कि वो ये है कि परमेश्वर से भी बढ़कर यदि आपके दिल में असाधारण रूप से यदि कोई प्रशंसा या स्नेह पूरी भरा हुआ भावनाएं हैं, उसे भी परमेश्वर मूर्ति पूजा की ओर से गिना गया है. We can look on these chapters in 1 Corinthians chapter 10 verse 14, Galatians 5 verse 20, Colossians 3 verse 5, 1 Peter 4 verse 3, and Ephesians chapter 5 verse 5. We can see this all about the idolatry. And the second sin of the second part is witchcraft, या हिंदी में हम कहते हैं जादू टोना. Here we can see about the practice of dealing with evil spirit, magical incantation and casting spells. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जादू टोना के द्वारा, जादुई मंत्र के द्वारा और अन्य बुरी आत्माओं की अभ्यास करने वालों को विषय को जादू टोना कहा गया है, जहां पे इस अभ्यास को करते हुए कुछ लोग अन्य की नाश भी करते हैं, उसी समय अपने जीवन की भलाई के लिए भी वो इस प्रकार की जो है जादू मंत्र और बुरी आत्मा की मदद से करते हैं अपनी भलाई के लिए भी. पर परमेश्वर के सामने जादू टोना के द्वारा जो भी कार्य करते हैं वो प्रभु के सामने पाप गिना गया है. All this witchcraft, many of them used to destroy others at the same time for their benefit. But according to the word of God, witchcraft, of all the works of this witchcraft, is been counted as the deeds of the flesh of the sinful nature before God. When we come into the fourth division of the sins to the third part, it tells about the 9 sins of temper. जब हम उसकी पापों का जो 4 विभाजन किया है, उसके तीसरे भाग में जब हम आते हैं तो वहां पे गुस्से और क्रोध के पाप की ओर से गिना गया है. उसमें 9 शरीर की कामों के बारे में वर्णन किया गया है. मैं बहुत ही जल्दी जाना चाहता हूं. वहां पे वो 9 पाप क्या क्या हैं? What are that 9 sins which is the sin of temper? Number 1 is hatred. हिंदी में हम बैर कहते हैं. Next one is variance. हिंदी में हम झगड़ा कहते हैं. और emulations, हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं. उसके बाद वराथ, WRATH, वराथ, हिंदी में हम क्रोध कहते हैं. स्ट्रेफ, हिंदी में विरोध शब्द से कहा गया है. सेडिशन,
हिंदी में उसे हम फूट कहते हैं, हेरेसीज हिंदी में विधर्म कहते हैं, एनवीइंग डाह कहते हैं। When we talk about the hatred, it tells about the ill will against anyone, tendency to against or angry at someone. किसी के ऊपर यदि हम हमारे ऊपर कुछ किए हैं तो हम उनके ऊपर जो है बैर की ओर से देखना, उसको कहा गया है। When we talk about the variants, it's about quarreling, debating and disputes. वहां पे हम देख सकते हैं कि जो झगड़े होते हैं उसमें वाद विवाद करने के लिए और झगड़े की आत्मा से करने के लिए और भंस करने का अनुभव होना, उसको कहा गया है। और इमुलेशन, व्हेन वी टॉक ईर्ष्या, इट टॉक्स अबाउट the rivalry spirit, like in the fellowship, in business, in society and in other fields we can see about that. और भी अनेक जगह में हम देख सकते हैं कि वहां पे एक आक्रुष्ट होकर, वहां पे प्रतिद्वंद भावना के तरह हर समय किसी ना किसी तरह वहां पे झगड़ा करवाते हुए कार्य करने के लिए वहां पे जो स्वभाव है उसको कहा गया है। क्रोध के बारे में, wrath, about the angry, which it is written about the determined and lasting angry, जहां पे in the word of God it says, if you anger before the sun set, you have to settle down. वचन में लिखा गया है यदि गुस्सा आपको आता है तो सूर्य अस्त होने से पहले ही आप उसको खत्म कर डालना है। पर यहाँ पे जो क्रोध के बारे में कहा गया है, जो एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक, महीनों तक भी उस क्रोध को स्थिर होकर बढ़ाते हैं, ये परमेश्वर के सामने पाप के या शरीर की कामों के बारे में कहा गया है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी विषय जो है ढा देना, और द जेलसी टॉक्स अबाउट ऑल्सो द जेलसी। और वहां पे हम आखिरी में भी देख सकते हैं हत्या के बारे में। वहां पे किसी का अबाउट द मर्डरर, इफ दोज हु किल और स्पॉइल हैप्पीनेस और ऑफ अदर्स, it is also the work and the deeds of the flesh. When we come into the fourth division of the sin, to the last part, it talks about the two sins of appetite, eating and drinking. यहाँ पे हम चौथवें और से जब हम आएंगे, वहां पे लिखा गया है कि वहां पे जो दो पाप हैं उसकी ओर कहा गया है कि वहां पे जो खाने और पीने की पाप के विषय में कहा गया है, उसका एक विषय है द नंबर वन इज ड्रंकनेस, मत वालापन। वी कैन रीड इन रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13, वे आर लिविंग इंटॉक्सिकेटेड, स्लेव टू ड्रिंक एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। नशे में रहना, नशे में डूब कर रहना और नशे की दाश के ओर रहना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में है, ये पाप की स्वभाव की ओर वर्णन किया गया है। ऐसे रिवीलिंग या लीला क्रीड़ा जो है, हम लोग खान पीन करते हुए जो प्रभु की आत्मा को छोड़कर शारीरिक तौर से इस संसार की अभिलाषाओं में कार्य करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि हर विषय में दंगे करते हुए, दंगों के बीच में रहते हुए कार्य करने के बारे में कहा गया है। These all are the 17 works of the deeds. In Galatians chapter 5 verse 19 it says, in 21 it is written also, no man who commits their sins will never inherit the kingdom of God. ऐसे शारीरिक काम करने वाले कभी भी स्वर्ग राज्य की वारिश नहीं बन सकते हैं, unless he confess and put them out of his life. जब तक वो अपने हर एक इस पापों को अंगीकार करे बिना, इन सारे शरीर के काम को अपने जीवन को ना हटाते हुए, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में क्या नहीं कर पाए, उसकी वारिश या प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये है उसका परिणाम होता है यदि कोई भी मनुष्य इस और शारीरिकी की कोई भी काम
कोई छोटे हो बड़े हो, परमेश्वर के सामने हर एक पाप परमेश्वर के सामने एक ही समान है। इसीलिए हमें सतर्क रहना है कि हमें इन सारे पापों से मुक्त होते हुए जो यीशु मसीह के द्वारा हमें उसे नई सृष्टि हमें प्राप्त करना है। सो वी शुड बी केयरफुल दैट वी हैव टू be a new creation through Jesus Christ so that we can inherit in the kingdom of God. And the last part what we are going to discuss is about the 9 fruits of the Holy Spirit. We're going to discuss it very quickly. It talks about love, जो प्रेम के बारे में कहा गया है। यहाँ पे वो अगेपा का वर्ड यूज किया गया है about the divine love, दिव्य प्रेम के बारे में। Here we can see that this is the love, devotion to the well-being of someone. हर किसी की भलाई के लिए प्रेम की स्वभाव वहाँ प्रकट होता है। Number 2 talks about joy. Number 3 talks about peace, जो शांति के बारे में, आनंद के बारे में। Next is talks about long suffering, धीरज के बारे में, और ऐसे कृपा के बारे में सारे वर्णन किए गए हैं। और ये सारे विषय आपको अगले वीडियो सेशनों के द्वारा इसका कंटिन्यूएशन होगा। अभी मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग ही हमारी नियति को में जिम्मेदार होते हैं। We are the one who makes our own destinies, and we cannot say any other people to judge. So let's close our eyes and commit into the hands of God. आए हम प्रभु के हाथों में दें और आज एक निर्णय लें। Our Heavenly Father, we commit everything into your hands. Today we studied about what are the works and deeds of the flesh, so that those who do these all, they cannot inherit in the kingdom of God. आज हमने सीखा है प्रभु, ये सारे कार्य करने वाले वो स्वर्ग राज्य में कभी भी वारिस या प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So today God give them that understanding to take which destiny they have to go and which they have to sow, so that they can have a good harvest, so that they can have a good reap in their life. God, you're going to do the same in everyone's life. God bless you. Amen.